Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss some question answers of second assignment of chapter 4th executive. So let us start our discussion regarding the question answer of this assignment. Your first question is, what is the meaning of executive? The executive executes and enforces law in political systems based on the principle of separation of powers. Authority is distributed among several branches like executive, legislative, and judiciary. An attempt to prevent the concentration of power in the hands of a small group of people. Your second question is, what do you understand by the term permanent executive? परमानेंट एग्जीक्यूटिव से आप क्या समझते हो? One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. जिस पॉलिटिशियन का हम एक प्रॉपर पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुनाव करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. Like politicians and political leaders who takes the big decisions fall in this category. And in the second category, people are appointed on a large or long term basis. This is called the permanent executive or civil services. All civil servants are permanent executives, because politicians are elected only for 5 years, but civil servants are elected for long service. Your next question is, what do you understand by the nominal executive? Nominal executive से आप क्या समझते हो? Nominal executive is a person who heads the executive branch but doesn't have the power to execute major and important decisions. मतलब जो क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो पर्सन होता है, वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो कोई बड़े लेवल का डिसीजन ले सके. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ रियल एग्जीक्यूटिव? रियल एग्जीक्यूटिव इज़ अ लीडर हु होल्ड्स रियल पावर एंड मेक important decisions for the country. You can take the example of Prime Minister. Prime Minister is real executive because he is responsible toward the Council of Ministers and people of country. Your next question is, what is the meaning of parliamentary executive? Parliamentary executive से आप क्या समझते हो? संसदीय कार्यपालिका. A parliament system of government means that the executive branch of government has the direct or indirect support of parliament. This support is usually shown by a vote of confidence. जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, वो क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या उसको सपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा. और ये जो सपोर्ट है, दिस सपोर्ट इज़ यूजुअली शोन बाय अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि वी बिलीव इन दिस गवर्नमेंट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम? द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय वोटर्स. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय and is accountable to the parliament. The president has a fixed term of office. The president has a fixed term of office. Your next question is, and second word, in a semi-presidential system, president is the head of state. The Prime Minister is the head of the government. Both are elected directly. PM and his
council of ministers are responsible to the parliament. For example, France and Sri Lanka, there is semi-presidential system. So your next question is, what is the process of electing the president? प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया. The president is indirectly elected by the people through elected members of the Parliament of India, you can say Lok Sabha and Rajya Sabha, as well as of the legislative assemblies in state of India like Vidhan Sabha, and services for a term of 5 years. जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मीन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या राज्य विधानसभा के मेंबर हो, ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं 5 इयर्स के लिए. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 2 फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव. कि 2 विशेषताएं कौन सी हैं इंडियन एग्जीक्यूटिव की. फर्स्ट, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. सामूहिक रूप से क्या होते हैं, जवाबदेही होती है संसद के प्रति इनकी. द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ एन एबिलिटी टू डिसमिस अ गवर्नमेंट. जो लोअर हाउस है उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है बाय गेटिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन द हाउस. सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर एज द सेंटर ऑफ पावर. इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव. जो प्राइम मिनिस्टर वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है. ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार का अध्यक्ष होता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रूलिंग गवर्नमेंट. सो ही हैज़ to play a significant and important role in the working of the government. These are 2 features of Indian executive. Next, question number 9. What is the process of appointing the vice president of India? वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की प्रक्रिया क्या होती है. The vice president is elected indirectly by members of an electoral college consisting of the members of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting is by secret ballot conducted by election commission. जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें PR सिस्टम को यूज़ किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और सीक्रेट बैलेट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन. इस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू डिसमिस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को डिसमिस कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको पद से हटाया जा सकता है. द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. अगर राज्यसभा के मेंबर को रिजोल्यूशन पास करते हैं, टू मूव सच रिजोल्यूशन अ 14 days नोटिस इज़ टू बी गिवन. मीन्स 14 days पहले नोटिस दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, एंड सच ए रिजोल्यूशन दाउ पास्ड बाय द राज्यसभा ओनली, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा द्वारा पास किया जाता है, बट मस्ट बी एग्रीबल टू द लोकसभा. लेकिन इसके ऊपर लोकसभा के मेंबर्स है वो भी एग्री होने चाहिए. अगर उनकी कंसेंट नहीं मिलती तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट वाइल डूइंग सो, ऐसा करते टाइम, द प्रेसिडेंट इज़ नॉट हैविंग अ फ्री हैंड. जो प्रेसिडेंट है वो स्वतंत्र नहीं होता. ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड अ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा. क्योंकि प्रधानमंत्री उसी को अपॉइंट किया, नियुक्त किया जाएगा जो क्या होगा, जिसके पास बहुमत होगा पार्टी का.
जो पार्टी का चुना हुआ मुखिया होगा उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा लोकसभा में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे सेंटर में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर हेड होता है। सो देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन हिम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर इज इट्स head advises the governor in the discharge of executive function. Your next question is, what is the process of appointing the governor? गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? गवर्नर of the state is appointed by the president. जो किसी भी राज्य का जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्न्स द अपॉइंटमेंट criteria for governor. He is appointed on the advice of the Union Council of Ministers. उसे अपॉइंट किया जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, और इन रियलिटी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के दो फंक्शन कौन से होते हैं, मुख्य कार्य? टू ऐड एंड एडवाइज द गवर्नर, गवर्नर को सपोर्ट करना, उसको सलाह देना। एंड सेकंड, द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टू मेन फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। The task of formation of the ministry begins with the appointment of the Prime Minister by the President. Second, allocation of portfolios, जो प्रोपेगेंडा है, जो एजेंडा है, जो पॉलिसीज़ हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। It is an undisputed privilege means special right of the Prime Minister to allocate portfolios to his ministers. The Prime Minister has the power to change the departments of the ministers anytime. And today's last question, what are the two discretionary powers of the governor? गवर्नर की दो स्पेशल पावर कौन सी होती हैं? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का चुनाव करना, और सेकंड, डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री। So dear students, today we have discussed 15 different questions. So I request you to listen it twice and thrice to understand all these questions with proper explanation. So till then, thanks and have a nice day.